Sorry class for the delay. I am taking a internal viva of the project, so that viva went a bit long as per my expected time. So sorry for let you waiting for 22 minutes. Okay. So we are going to discuss the last part today of our syllabus, that is the regular expression, and we are going with the introductory level only. We are going with introductory level only, how you can create regular expression in Java and how you can process them. Okay. So I will request everyone to be there in the session till end. Okay. That will be very useful for you guys. So let's start with the regular expression. तो भैया रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज क्यों करेंगे, एक्सप्रेशन हम रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज क्यों करेंगे? टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इन स्ट्रिंग। किसी भी गिवन स्ट्रिंग या टेक्स्ट में हमको सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जावा में रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग ही होती है, स्ट्रिंग ही होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। जावा में रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग ही होती है। ओके, सो व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशन? Regular expressions, which are known as regex, defines a search pattern for strings. Okay, search strings के लिए क्या होता है? search pattern होता है। This search pattern can be anything from a simple character. I can search for a within the string. Okay, if I have an string, I will have regex a. Now I have an input string and I want to search a in this string. Okay, so I will be able to search this a in this particular string. Okay, अब फिक्स्ड, एक तो सिंपल कैरेक्टर हो सकती है, अब फिक्स्ड स्ट्रिंग, ठीक है, ये सिंपल कैरेक्टर है। अब फिक्स्ड स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, तो फिक्स्ड स्ट्रिंग की ए बी सी विल बी द फिक्स्ड स्ट्रिंग, सो इट विल नॉट मैच विद दिस, इट विल नॉट मैच विद दिस। Or a complex expression containing special character describing the pattern. For example, look at this, GLA/D6. This is a complex regular expression which is looking for any string starting with capital G followed by capital L followed by A, then there are six numbers, then there are six digits, there are six digits, exactly six digits. Okay, this is a complex expression. Okay, this expression can search for, this expression can search for any employee ID from the string, any valid employee ID, GLA employee ID from the given strings. Okay, so it will find all the valid IDs. Okay, so कॉम्प्लेक्स हो सकती है, सिंपल हो सकती है, और स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी हो सकती है भैया, ठीक है। अ रेगुलर एक्सप्रेशन अ पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स और मैचेस अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वो पैटर्न होता है जो डिस्क्राइब करता है या मैच करता है सेट ऑफ स्ट्रिंग से, गिवन स्ट्रिंग उसके सेट से क्या करेगा, मैच करेगा। ओके, ठीक है। अगर मैंने बोला कि भैया ये है मेरी एक एरे लिस्ट है, मेरी एक एरे लिस्ट है, ओके, मेरी एक एरे लिस्ट है। नाउ इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दो, इसमें वैलिडेट कर दो, इसमें वैलिडेट कर दो। दिस एरे लिस्ट इज कंटेनिंग EMP ID ऑफ GLA एम्प्लॉय। आई वांट टू वैलिडेट इट, आई वांट टू वैलिडेट इट। ओके, मुझे वैलिडेट करना है टू आइडेंटिफाई ऑल वैलिड GLA IDs। ओके, GLA की IDs मुझे वैलिडेट करनी है। So I can create a regular expression and apply that regular expression against this content of this array list, and I will filter out those which are valid. I will filter out those which are valid. So I can use regular expression to perform the same. Okay, because there are things are fixed. Okay, GLA is fixed in everything, but the number is going to vary. The number is going to vary. Okay.
A regular expression is a string of characters that describes a character sequence. That describes a character sequence. क्या होती है भैया? स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर होती है जो डिस्क्राइब करती है कैरेक्टर सीक्वेंस. तो देखिए GLA/D6 ये मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है. दिस इज डिस्क्राइबिंग एनी स्ट्रिंग starting with capital G followed by capital L, then capital A, and then followed by 6 numbers. Numbers in a sense digits. Okay, there is a constraint. The GLA ID always starts with the number, always starts with 1. The number always starts with 1. Okay, so this is the description from the regular expression. This is the description from the regular expression. Okay, so regular expression is a string of characters that describe a character sequence. That describes a character sequence. कि वो sequence of character क्या होगा, वो sequence of character क्या होगा. ठीक है, let me give you another example. Okay, if I'll write this number 9 plus 91 9826 268015. Okay, 10 digits हैं, 2 2 4 2 6 2. Yes, okay, there are 10 digits. Okay, I want, is this a valid number or not? Working or not is not the case. Is this a valid number or not? Okay, अगर मैं यूजर से नंबर मांग रहा हूँ तो वो नंबर मुझे ये भी दे सकता था. ओके, ये भी दे सकता था. ये भी दे सकता था. So how I can validate this thing? How I can validate this thing? Okay, so I can use a character description. इसके लिए क्या लिखूंगा मैं? Caret plus. Okay, the character plus should be the first character. It should be the first character or zero. मैंने ग्रुप बना दिया, या तो प्लस आएगा या जीरो आएगा पहला कैरेक्टर, या तो प्लस आएगा या जीरो आएगा. तो ये मेरा इनवैलिडेट हो गया, ये मेरा इनवैलिडेट हो गया. मुझे बताना पड़ेगा या तो प्लस आएगा पहले कैरेक्टर में, या तो प्लस मिलेगा या जीरो मिलेगा या 9 1 मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और 1 का ग्रुप बना के देना पड़ेगा मुझे. तो मुझे क्या मिलेगा, या तो प्लस मिलेगा या जीरो मिलेगा या 9 1 मिलेगा. ओके, सो अगर प्लस मिलता है मुझे या जीरो मिलता है या 9 1 मिलता है, ठीक है, पहला कैरेक्टर बिगिनिंग में, सो देन आई हैव टू लुक फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स. देन आई हैव टू लुक फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स. अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो हाउ मेनी कैरेक्टर आई शुड लुक फॉर. So there is the case, I have to write a thing which describes the character sequence, Okay, moving ahead, जो हमने ये बात की है ये complex expression की, इनको देख लेते हैं. Regular expression can specify wildcat characters, set of character and various quantifiers. मतलब ऐसे भी चीजें होंगी जो बताएंगी एक या एक से ज्यादा बार ये आएगा, या जीरो से ज्यादा बार आएगा. ऐसे क्वांटिफायर्स भी होंगे. वाइल्ड कार्ड आपने देखा, बिगनिंग. Okay, then there's an and, the dollar symbol reflects the and. Okay, so all these things are the wildcard characters. Okay, you can specify a regular expression that represent a general form that can match several different specific character sequence. Okay, तो ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि सेवरल डिफरेंट कैरेक्टर सीक्वेंस को भी क्या कर देगी, मैच कर देगी. ओके, चलें. A regular expression is comprised of normal characters, ठीक है, A B C D character classes, और you can call set of कैरेक्टर क्लासेस कैसे रिप्रेजेंट होती हैं? एक तो रिप्रेजेंट होती है भैया /w एनी वर्ड कंटेनिंग कैरेक्टर्स. अब वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, स्मॉल ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, या 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स. एनीथिंग कैन बी कंसीडर्ड. ओके,
तो कैरेक्टर क्लासेस हम कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके बनाते हैं। लेट वी डिस्कस दिस थिंग आल्सो। वाइल्ड कैट कैरेक्टर्स जो कि आपको गाइड करते हैं कि पहला कैरेक्टर होगा कि लास्ट कैरेक्टर होगा, देयर आर मोर, एंड देन कम्स द क्वांटिफायर asterisk suggest zero or once or more time, then okay, one or more time, then sorry, zero or more time, then question marks comes one or more time, then plus comes, okay, one or more time for the same once or more. So all these are the quantifier कि ये कैरेक्टर जो है, ये जो एक्सप्रेशन है कितनी बार आ सकती है आपके स्ट्रिंग में, इनपुट स्ट्रिंग में कितनी बार आ सकती है, ओके। देन यू विल गेट एन एग्जैक्ट मैच, ओके। सो नॉर्मल कैरेक्टर क्या होगा भैया, द नॉर्मल कैरेक्टर इज मैच्ड एज इट इज, जैसा है वैसे ही मैच करेगा। अगर मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है ए बी, तो वो इस इनपुट स्ट्रिंग में कैसे मैच करेगी ये देखना है। दिस विल बी द मैच स्ट्रिंग। सो दिस इज हाउ ए बी देखिए एज इट इज मैच हो गया, एज इट इज मैच हो गया, ओके, डन। सो ये एज इट इज मैच कर जाएंगे नॉर्मल कैरेक्टर्स, ओके। विथ स्पेशल कैरेक्टर्स इन केस हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे सर्च करना पड़ेगा। So these are the meta characters that are supported by the regex API in Java। regex की जो API है वो सपोर्ट करती है जावा में। जो regex बनाने के लिए जो है मेटा कैरेक्टर्स वो ये हैं, एंगल, पैरेंथेसिस, स्क्वायर, कर्ली, बैकस्लैश, कैरेट, then hyphen, then equals, then dollar, then not equals to, then comes this pipeline, square, closing brackets, question mark, asterisk, plus, dot, and the angular bracket, okay. So these are the characters that are supported, okay. So these characters have special meaning, some are quantifiers, जैसे क्वेश्चन मार्क क्वांटिफायर है भैया, करली ब्रेसेस के अंदर हम क्वांटिफायर प्लस एक क्वांटिफायर है, स्टार एक क्वांटिफायर है कि एक या एक से ज्यादा बार जीरो या मोर टाइम्स हम क्रिएट कैरेक्टर क्लासेस। स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके हम कैरेक्टर क्लासेस बनाते हैं। सम सर्चेज एट द बिगिनिंग, सम सर्चेज एट द एंड, कुछ बिगिनिंग से सर्च चालू कराते हैं, कुछ एंड से सर्च चालू कराते हैं, ओके। तो ये डॉट क्या करता है, डॉट क्या करता है, मैचेस एनी कैरेक्टर, डॉट किसी भी कैरेक्टर से मैच कर जाएगा, डॉट किसी भी कैरेक्टर से मैच कर जाएगा। दिस कैरेट मैचेस एट द बिगिनिंग, द कैरेट मैचेस एट द बिगिनिंग। तो डॉट तो आप इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, कैरेट के साथ आपको कोई कैरेक्टर देना पड़ेगा, कोई कैरेक्टर देना पड़ेगा या कैरेक्टर क्लास देनी पड़ेगी। डॉलर मैचेस एट द एंड, मतलब वही कैरेक्टर या कैरेक्टर क्लास एंड में मैच करने के लिए। Square bracket is used to create character classes. Square bracket are used to create character classes with characters inside them. और this is the pipeline matches anyone, या तो उसके लेफ्ट हैंड साइड का आर्ग्यूमेंट मैच कर जाएगा या राइट हैंड साइड का आर्ग्यूमेंट मैच कर जाएगा। Then comes slash d, any digits, slash capital D, any non-digit, slash s, any white space character, slash capital S, any non-white space character, slash w, any word character, slash w, any non-word character, स्लैश बी नॉन वर्ड कैरेक्टर में स्पेशल सिंबल्स भी आ जाते हैं भैया। स्लैश बी है बाउंड्री, स्लैश बी है नॉन बाउंड्री, ओके। बाउंड्री बैक रेफरेंसिंग के लिए यूज होगी, वो हम करने वाले नहीं है अभी। चलें, quantifiers, question mark, once or not at all, once or not at all, question mark, then asterisk, occurs zero or more time, plus occurs one or more time, and curly braces के अंदर n, exactly n times, करली ब्रेसेस के अंदर n कॉमा, ऑकर्स n और मोर टाइम, n टाइम्स भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। देन n कॉमा n, ऑकर्स एटलीस्ट n टाइम्स बट नॉट मोर देन m टाइम्स, बट नॉट मोर देन m टाइम्स, ओके। सो ऑल दिस आर दी क्वांटिफायर्स। इनको यूज कैसे करेंगे ये देखेंगे भैया हम अभी, है ना। A character class is a set of characters. A character class is specified by putting character in a class between brackets, in a class between characters in the class between brackets। ये देखिए ये क्या बन गई कैरेक्टर क्लास, ये क्या बन गई कैरेक्टर क्लास, ये किसी एक कैरेक्टर से मैच करेगी, विल मैच एनी वन कैरेक्टर, ठीक है।
सिंगल कैरेक्टर से मैच करेगी। एनी ए और बी इन द इनपुट स्ट्रिंग इज मैच, एनी ए और बी इन द इनपुट स्ट्रिंग विल मैच। ओके, चलें जावा में रेजेक्स कैसे करते हैं। जावा में रेजेक्स एक तो आप स्ट्रिंग एपीआई में यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग एपीआई में यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, रेजेक्स क्लासेस आर प्रेजेंट इन java.util.regex पैकेज दैट कंटेन्स 3 क्लासेस। 3 क्लासेस है उसके पास, एक है पैटर्न, एक है मैचर, एक है पैटर्न सिंटेक्स एक्सेप्शन। पैटर्न is used to create or you can say compile रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए जावा में रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग के तौर पे लिखते हैं, लेकिन उसको कंपाइल क्या करते हैं, पैटर्न के ऑब्जेक्ट में। तो जावा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे काम होता है, तो पैटर्न का ऑब्जेक्ट बताता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे हमको मैच करना है। So pattern object is the compiled version of regular expression. Pattern object is the compiled version of regular expression. One more thing, pattern class does not have any public constructor. Pattern class के पास public constructor नहीं है, तो उसका method कैसे बनाएंगे, उसका object कैसे बनाएंगे। We use its public static method compile to create the pattern object by passing regular expression argument C. String regex इक्वल्स टू डबल कोट्स ए बी। अब इस एक्सप्रेशन को हमको अगर मैच कराना है तो हम क्या करते हैं, पैटर्न का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पैटर्न ओबीजे, इसको पैटर्न ही नाम दे दें हम, पैटर्न इक्वल्स टू पैटर्न डॉट कंपाइल। ये सी स्मॉल है भैया, है ना, मैं कर ही देता हूं, पैटर्न डॉट कंपाइल रेजेक्स। तो ये रेजेक्स को पैटर्न के फॉर्म में कंपाइल कर देगा भैया। देन कम्स दी मैचर। मैचर क्या करता है, वो इंजन है जो आपको सारे मैचेस के इंडेक्सेस बता देगा, मैचेस मिले हैं क्या, एग्जैक्ट मैच मिला है क्या, ये बता देगा, ठीक है। सो मैचर इज दी जावा रेजेक्स इंजन ऑब्जेक्ट दैट मैचेस द इनपुट स्ट्रिंग पैटर्न। जो भी इनपुट स्ट्रिंग आप देंगे उसका पैटर्न विद द पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ये जो पैटर्न का ऑब्जेक्ट है इससे क्या बनाएगा, मैच कराएगा उस पैटर्न को। मैचर क्लास डज नॉट हैव एनी पब्लिक कंस्ट्रक्टर। मैचर क्लास के पास भी पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है। वी गेट अ मैचर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग पैटर्न ऑब्जेक्ट मैचर क्लास। मतलब पैटर्न के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, मैचर्स मैचर मेथड कॉल करेंगे। यस, so matcher object using pattern object method matcher method that takes the input string as an argument। तो ये जो मैचर मेथड है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेगा जो कि होगी इनपुट स्ट्रिंग जिसके ऊपर हमको पैटर्न अप्लाई करना है। ओके, we then uses matches method to return boolean result on input string। ओके, ऑन इनपुट स्ट्रिंग मैचेस द रेजेक्स पैटर्न और नॉट। रेजेक्स पैटर्न को मैच किया है कि नहीं किया है, रेजेक्स पैटर्न को मैच किया है कि नहीं किया है। ओके, ठीक है। चलें, एक्सेप्शन जब इनकरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन होगी तब थ्रो करेगा, ठीक है। चलें अब हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, हम प्रोग्रामिंग पे मूव करते हैं। उससे पहले हम जाना चाहते हैं एक वेबसाइट पे, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि है रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने की वेबसाइट। नाम क्या है भैया, regex101.com। क्या है, regex101.com। जो इसमें हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन सही काम कर रही है कि नहीं। देखिए जब मैंने ए बी दिया तो उसने क्या किया, उसको 2 जगह मैच कर दिया, उसको 2 जगह मैच कर दिया। ओके, लेकिन जब ये ए बी को मैं जावा के थ्रू रन करूंगा तो ये मेरे को बोलेगा मैच ट्रू नहीं है, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग में ए बी के अपार्ट भी कैरेक्टर हैं, ए बी के अपार्ट भी क्या है, कैरेक्टर हैं, ए बी के अपार्ट भी क्या है, कैरेक्टर हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं बोलूं कि ए बी को ढूंढो कहाँ पे, ए बी को ढूंढो बिगनिंग में, मैं कैरेट यूज कर लूं तो देखिए मुझे कोई मैच नहीं मिलता है, मुझे कोई मैच नहीं मिलता है। ओके, और अगर मैं ए बी को ढूंढूं एंड में, ठीक है, तो भी मुझे मैच नहीं मिलता है। मैं बोलूं ए बी कम से कम 2 बार आया हो, कम से कम 2 बार आया हो, तो भी मुझे मैच नहीं मिल रहा है, ठीक है।
ए बी कम से कम 2 बार आया हो तो भी मुझे मैच नहीं मिल रहा है। ठीक, लेट्स सी। ओके, आई एम नॉट बीन एबल टू फाइंड दी मैच कि ए बी कहीं 2 बार आया हो। ठीक, ओके, स्टिल नॉट गेटिंग दी मैच। लेट्स सी, I am reloading that particular, okay. AB, this is how AB is matched with abnormal, okay, ठीक है. Now I want, I will group it, and I want this group to be present at least 2 times, okay. So क्या हुआ भैया, फर्स्ट कैप्चरिंग ग्रुप ए बी, ठीक, मैचेस एग्जैक्टली 2 टाइम, ओके. अगर मैं इसको बोलता हूँ इस सिंटेक्स को, रुकिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, ए बी, ओके, ठीक है. तो ये मेरे को डायरेक्टली मिल गया, ये मेरे को क्या मिल रहा है, ए बी तो मैच हो रहा है. मैंने बोला इज हाउ, ठीक, ओके, इज हाउ. तो ए बी लगातार आ रहा है तो मुझे 2 बार मिल रहा है. लेकिन अगर मेरा ये सेंटेंस है तो मुझे ट्रू मैच नहीं मिल रहा, ठीक है, ओके, कि मेरी एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रही है. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग. तो मैंने बोला ए बी followed by any character, okay. Still I do not finding any match, okay, still I am not finding any match. So ये हो गया मेरा कैप्चरिंग ग्रुप. इफ आई वांट टू कीप ए ग्रुप, तो देखिए मुझे जैसे ही मैंने क्वांटिफायर हटाया तो मुझे ए बी 2 बार मिल गया, मुझे 2 बार मिल गया. अगर मैंने बोला ए बी स्पेस तो एक ही बार मिल रहा है, ए बी स्पेस, आई एम गेटिंग ओनली 1 टाइम, ठीक है. सो सेम विद द केस अगर मैं बोलता हूँ जीएलए के लिए, सेम विद द केस में बोलता हूँ कि मुझे जीएलए 118304 इस आईडी को वैलिडेट करना है. तो ऑल जीएलए आईडी आर स्टार्टिंग विद जीएलए, आई विल से /d एंड आई विल राइट हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम, 6 डिजिट्स होनी चाहिए आगे, बिल्कुल है. नाउ इफ आई राइट दिस ABC 1 2 3 4 5 6, it is not matching just because, किसके लिए भैया, क्योंकि GLA से स्टार्ट नहीं है. इफ आई से GLA 118304, it's also not matching. if I want to keep this in match, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट बताना पड़ेगा कि भैया क्या मिल रहा है मुझे G या कैपिटल G, ओके, फॉलोड बाय स्मॉल l और कैपिटल L, followed by small a or a capital A. Okay, now I will get the match. See, 2 matches are there. Okay, match a single character present in the list below. ठीक, तो मैंने पहले कैरेक्टर के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2G बताए हैं कि ये दोनों होना चाहिए. नाउ आई वन मोर थिंग आई नो कि जीएलए की आईडी हमेशा कैरेक्टर के बाद 1 से स्टार्ट होती है. किससे स्टार्ट होती है, 1 से. तो मैंने क्या बोला कि क्या मिलना चाहिए मुझे, 1 मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए. और उसके बाद डिजिट मिलनी चाहिए कितनी बार, 5 बार. ओके, सो आई कैन वैलिडेट इट, ओके, दैट ऑल द आईडी स्टार्ट्स विथ 1. तो 1 क्या हो गया, मेरा फिक्स कैरेक्टर है इस पोजीशन पे. तो मेरे को हर एक पोजीशन के बारे में जानकारी देना was necessary. Okay, see, so this is how we work. अब जावा में कैसे काम करते हैं ये भी देख लेते हैं. I have a project named regex demo. I will create a class saying regex demo, and I will paste this in section G package. Okay, section G package. Okay, चलिए, मुझे मेन मेथड चाहिए, मैं मेन मेथड के अंदर काम करूंगा. मुझे चाहिए एक स्ट्रिंग regex. ओके, regex को मैं बोलता हूँ बहुत ही सिंपल AB. अब मैं बोलता हूँ दिस AB शुड बी
फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, ठीक है, ओके, फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर जीरो और मोर टाइम्स, जीरो और मोर टाइम्स। चले बाद में करते हैं, पहले सिंपल सा करके देखते हैं। मैंने बोला मैं इसको पैटर्न बना लेता हूँ, पैटर्न बना लेता हूँ मैं इसका। कहाँ से मिला? जावा डॉट यूटिल डॉट रेजेक्स से पैटर्न मिला। मैंने बोला पैटर्न बना दीजिए भैया इसके लिए। तो कैसे बनता है? कंपाइल मेथड कॉल करके। मैंने बोला कंपाइल मेथड, ओके, और यहाँ पे रेजेक्स को पास कर दिया। ओके, मैंने यहाँ क्या किया? रेजेक्स को पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या बनाता हूँ? मैचर इंजन बनाता हूँ जो मैच करके ला देगा इस पैटर्न को, ठीक है। मैचर को मैंने बनाया किससे? पैटर्न का ऑब्जेक्ट डॉट मैचर, और इसको कैरेक्टर सीक्वेंस चाहिए, इसको कैरेक्टर सीक्वेंस चाहिए, एक इनपुट स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं एक इनपुट स्ट्रिंग बना लेता हूँ, इन स्ट्रिंग input equals to, this is how AB is matched with abnormal, ओके। मैंने ये स्ट्रिंग यूज कर ली और इस इनपुट स्ट्रिंग को यहाँ पास कर दिया, इस इनपुट स्ट्रिंग को पास कर दिया। देखिए अब एग्जैक्ट मैच तो नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। टू चेक इफ इनपुट मैच्ड एग्जैक्ट विथ रेजेक्स। रेजेक्स सिर्फ दो कैरेक्टर की बात कर रही है, रेजेक्स सिर्फ दो कैरेक्टर की बात कर रही है, और इनपुट में क्या है? मोर देन टू कैरेक्टर हैं, मोर देन टू कैरेक्टर हैं। तो मैं करूंगा एस आउट मैचर डॉट मैचेस, तो मुझे ये फॉल्स दे देगा बेटा, देखिएगा, है ना। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मुझे क्या कर देगा? ये मुझे फॉल्स दे देगा, ठीक। ये देखिए फॉल्स दे दिया, उसने मुझे बताया ही नहीं कि मैच मिला है, उसने मुझे बताया नहीं कि मैच मिला है। अगर मुझे क्या करना है? एग्जैक्ट मैच चाहिए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इसको एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ ए बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए दो कैरेक्टर की बात है, तो दो कैरेक्टर से तो मैच कर जाएगा, ओके। अब देखिए, है ना, मुझे इससे मैच कराना है तो मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन सुधारनी पड़ेगी। मतलब ए बी के पहले, ए बी के पहले कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं। डॉट कैन कम, डॉट कैन कम हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन मार्क, ओके, कि ए बी से पहले कोई कैरेक्टर हो या ना हो, ठीक। ए बी के बाद कोई कैरेक्टर कितने भी ऑकरेंस हो या ना हो, लेट्स चेक दिस। या तो एक्सेप्शन मिल जाएगा रॉन्ग सिंटेक्स के कारण, स्टिल फॉल्स, स्टिल फॉल्स। ए बी के पहले और ए बी के बाद कितने भी कैरेक्टर्स हों, let me check once again the question mark feature, okay, let me check once again the question, once or not at all, occur zero or more time. Let's see, let's change this to asterisk, let's change this to asterisk and see what happens. Okay, so you'll understand, ए बी के पहले कितने भी कैरेक्टर हो और कितने भी कैरेक्टर मिल जाए मुझे बाद में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैच मिल रहा है, ठीक है। नाउ टू फाइंड कि कहाँ कहाँ मैच मिल रहा है, किस किस इंडेक्स पे मिल रहा है, हम यूज करते हैं मैचर का फाइंड मेथड, ठीक है। फाइंड ये क्या करता है? हर एक अगले मैच को फाइंड करता है, और हम क्या करेंगे? हम मैचर से बोल देंगे हमको बता दे भैया स्टार्ट, है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। हमने बोला स्टार्ट इंडेक्स ऑफ मैच, ठीक है भैया, और हमें क्या बता दे? एंड इंडेक्स ऑफ द मैच, ओके। एंड इंडेक्स दैट इज नॉट इंक्लूसिव, ओके, दैट इज नॉट इंक्लूसिव, स्टार्ट इज इंक्लूसिव, ठीक है भैया। मैचर डॉट एंड, ठीक, ओके। चलें लेट्स सी, what happens while find, why this is not running, matcher dot find,
ओके, वो उसको पूरा स्ट्रिंग मिल रहा है, इसलिए वो स्टार्ट और एंड इंडेक्स पे नहीं जा रही है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ ए बी को सर्च करता हूँ, लेट्स सी कि हमको ए बी कहाँ कहाँ मिल रहा है, जबकि पूरा मैच तो नहीं मिला, एग्जैक्टली मैच तो हमको नहीं मिला। ओके, सी एग्जैक्ट मैच तो नहीं है, लेकिन ए बी 2 बार मिला है, 12 और 14 पे। 12 पे स्टार्ट हो गया, 14 पे एंड हो गया, 31 पे स्टार्ट हो गया, 33 पे एंड हो गया। सो वी कैन आइडेंटिफाई द इंडेक्स की किस इंडेक्स पे वो हमको मिला है, किस इंडेक्स पे हमको मिला है। ओके, सी स्ट्रिंग डॉट, सॉरी, इनपुट डॉट रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस दिख रहा है, रेजेक्स दिख रहा है आपको। मैं बोलता हूँ रिप्लेस करूंगा मैं इंडेक्स वैल्यू से, कैरेट इंडेक्स। ओके रुक जाइए, ये मुझे करने नहीं देगा। रिप्लेस फर्स्ट, रिप्लेस लास्ट, स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स एंड स्ट्रिप सब स्प्लिटिंग टू रिटर्न। आई वांट अ मेथड जिससे कि मैं वो कैरेक्टर को क्या कर सकूं, चेंज कर सकूं। यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में चेंज करने नहीं देगा। देयर मस्ट बी एन मेथड रिप्लेस ओल्ड कैरेक्टर न्यू कैरेक्टर, लेकिन ये इंडेक्स नहीं बताने दे रहा है। छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं हम, है ना, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो गाइज ऐसे हम क्या करने वाले हैं, इन दिस वे वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दी पैटर्न। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि मैंने जीएलए के लिए लिखी थी, ठीक है। जी, कैपिटल जी, फॉलोड बाय एल, small l, capital L, anything, then followed by capital small a, capital A, then followed by 1, then I will get slash d। अब जावा में जो स्लैश है भैया वो एस्केपिंग सीक्वेंस है, तो मुझे डबल स्लैश लगाना पड़ेगा स्लैश डी को यूज करने के लिए। एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, ओके, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, ओके। अब मैं इस इनपुट पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ लिखने वाला हूँ एक GLA ID, ओके, 118304। ठीक है भैया, ये मैंने आईडी लिखी है, मेरे को ट्रू देगा मैच, ये मेरे को ट्रू देना चाहिए मैच एज पर माय कैलकुलेशन। लेट्स सी, ओके, ट्रू। नहीं भैया, ज्वाइन नहीं करनी नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन करनी है, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सो आई एंड दिस सेशन ओवर हियर गाइस। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं कि पैटर्न ऑब्जेक्ट कैसे करना है, ठीक है, पैटर्न ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, मैचर ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, और रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन के मेटा कैरेक्टर्स की बात जो हमने थ्योरी में पढ़ी है भैया, ठीक है, ओके। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, दैट्स ऑल फॉर दिस। ये हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक था। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, ही और सी कैन कांटेक्ट मी, ठीक है। So thank you class, we'll see you, okay, if you have any doubt, okay। ओके सर। Okay, चलेगा, है ना, डिस्कशन करना था कुछ एंड ऑफ दी सेशन, अब वो देखेंगे किसी दिन और प्लान कर लेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू, आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू क्लास।